Hello students, I am Manisha and today we are going to read chapter 6 of history, Decline of the Mughal Empire. मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन पतन. To understand this chapter, we will see a short movie of Mughal Empire. The later Mughals. The rule of great Mughals started with Babur and culminated with the death of Aurangzeb. The successors of Aurangzeb were called the later Mughals. In 1707 CE, Aurangzeb's son Bahadur Shah came to the throne. He was too incompetent to suppress the Marathas and the Rajputs. He was succeeded by Jahandar Shah in 1712 CE. Around this time, Sayyid brothers, the powerful nobles, became very powerful and were known as kingmakers. They removed Jahandar Shah from the Mughal throne and made Farrukhsiyar the next Mughal emperor. In 1719, Sayyid brothers killed Farrukhsiyar and made Muhammad Shah the Mughal emperor. During his reign, Nadir Shah, the ruler of Persia, invaded Delhi and carried away large booty included Kohinoor diamond and peacock throne. Muhammad Shah was succeeded by Ahmad Shah and Alamgir II. The later Mughals were not capable as great Mughals. They became puppets in the hands of their shrewd nobles. Depending on their origin, the nobles were divided into three main rival groups. They were Turanis from Turkestan, the Iranis from Iran, and the Hindustanis from India. They often played the role of kingmaker like Sayyid brothers and conspired to place their favorites on Mughal throne. Shah Alam II was the next Mughal ruler who allied with the Nawabs of Awadh and Bengal to curb the growing power of British. However, the British army defeated the combined forces of these three powers in the historic Battle of Buxar. The Mughal emperor was now compelled to grant the English East India Company the Diwani or the rights to collect revenue of the provinces of Bengal, Bihar and Odisha. The last Mughal ruler was Bahadur Shah Zafar, who participated in the revolt of 1857. Hence, he was imprisoned in Rangoon, where he died in 1862. Aurangzeb, Battle of Buxar. Causes of the decline of Mughal. A number of factors were responsible for the decline of Mughal Empire. A. Emperor Aurangzeb had depleted the military and the financial resources of his empire by fighting a long war in the Deccan. B. His rigid and intolerant policies led the Sikhs, Marathas, and Rajputs to revolt against Mughal Empire. C. His successors were too weak and incompetent. D. The efficiency of the imperial administration broke down as it was difficult for later Mughals to keep a check on their powerful nobles. E. The invasion of Nadir Shah, the ruler of Persia, and Ahmad Shah Abdali, the Afghan leader, further weakened the Mughal Empire. Now students, after seeing the film, come to the topic later Mughal rulers. मुगल रूलर्स के वारिस कौन कौन थे? मुगल रूलर्स के बाद कौन कौन तख्त पर बैठा? सक्सेसर्स जो उनके वारिस थे वो कौन कौन थे? सक्सेसर्स टू द मुगल एम्परर औरंगजेब आर कॉल्ड. जो सक्सेसर्स जो उनके वारिस थे किसके? मुगल एम्परर्स के, औरंगजेब के बाद के मुगल कहे जाते हैं. फर्स्ट आता है इसमें बहादुर शाह, गद्दी पर बैठा 1707 से लेकर 1712 तक. औरंगजेब का लड़का था, नाम था मुअज्जम शाह आलम. अपने आप को खुद राजा घोषित कर लिया और अपने आप को एक खिताब दिया बहादुर शाह का. 65 इयर्स की एज थी जब वो गद्दी पर बैठा और जब उसका तिलक हुआ. कॉर्नेशन माने राज तिलक होना. पढ़ा लिखा व्यक्ति था लेकिन कमजोर शासक था. डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी. वो किसी को भी मना नहीं कर सकता था और इम्पोर्टेंट जितने भी मैटर्स होते थे उन्हें भी देरी से निपटाता था. हर किसी को खुश रखना चाहता था, इसलिए उसे हिटलेस किंग, शाह बेखबर की उपाधि दी गई क्योंकि वो हर मामले को असावधानी से हैंडल करता था. इसलिए उसे उपाधि दी गई हिटलेस किंग, शाह बेखबर. नाउ द नेक्स्ट किंग इज जहांदार शाह. 1712 से 1713 तक जहांदार शाह ने डिफीटेड एंड किल्ड, अपने भाइयों को हरा दिया और मार दिया और गद्दी पर बैठ गया. जब गद्दी पर बैठा
तो उसकी उम्र थी 51, 51 साल की। अपने शासनकाल की वजह से कंडक्ट, उसका जो आचरण था, उसे कहा गया लॉर्ड ऑफ मिसरूल। मिसरूल माने जो ठीक से शासन नहीं करता, जिसका शासन बिना नियम कायदे कानून के चलता है, अराजकता का शासन। बहादुर शाह को क्या कहा गया? शाह बेखबर, असावधान राजा। जहांदार को कहा गया लॉर्ड ऑफ मिसरूल, अराजकता का शासक। नाउ द नेक्स्ट किंग इज फारूक सियार। 1713 से 1719 के बीच में बैठे। डिपोज्ड माने होता है निपटाना, यहाँ पर मीनिंग होगा हटा दिया गया। किसके द्वारा? सैयद ब्रदर्स के द्वारा, और उन्हें मौत की सजा दी गई 1719 में। नेक्स्ट रफी उल दजरत, 28 फरवरी 1719 से 4 जून 1719 तक। रफी उस शान का बेटा था। पपेट इन द हैंड्स ऑफ सैयद ब्रदर्स, जो सैयद ब्रदर के हाथ की पपेट कठपुतली था। रफी उल दजरत डाइड ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन कहते हैं सेवन करना, यहाँ पर इसका मतलब होगा टीवी या क्षय रोग। रफी उल दजरत की मृत्यु हो गई क्षय रोग या टीवी से। नाउ द नेक्स्ट इज रफी उल दौला, शाहजहां सेकंड। 6 जून 1719 से 16 सितंबर 1719 तक। रफी उल दौला बड़ा भाई था रफी उल दजरत का। उसे टाइटल उपाधि मिली शाहजहां सेकंड की। वो भी कठपुतली था सैयद ब्रदर्स के हाथों की। रफी उल दौला बीमारी की वजह से 16 सितंबर 1719 में मर गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोहम्मद शाह, AD 1719 से 48 तक। नेक्स्ट मुगल एम्परर था रोशन अख्तर, जहांदार शाह का बेटा। उसने टाइटल लिया, उसे उपाधि मिली मोहम्मद शाह की। उसके शासनकाल में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का उपयोग सैयद ब्रदर्स कर रहे थे। विल्डेड माने उपयोग करना। मीनवाइल इसी समय दिल्ली का जो ऑफिस था वजीर का, वो चला गया था इनकॉम्पिटेंट हैंड्स। इनकॉम्पिटेंट हैंड्स का मतलब है अक्षम हाथों में, जो उस काम को संभाल नहीं सकते, उसे कहते हैं इनकॉम्पिटेंट। रिजल्टेड इन फर्दर डिसइंटीग्रेशन, और आगे जाकर ये बढ़ गया मुगल एम्पायर। ही बिकेम फेमस, वो प्रसिद्ध था मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से। मुगल एम्पायर उसके शासनकाल में स्मॉलर इन साइज, छोटा होता चला गया। मोहम्मद शाह डाइड इन अप्रैल 1748, और उसके बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा जिसका नाम था अहमद शाह। एंड नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज अहमद शाह 1748 to 54। अहमद शाह का जो शासन था, इन्वेशन ऑफ अफगान इन्वेडर, वो जाना जाता था अफगान आक्रमणकारियों के आक्रमण से। अहमद शाह अब्दाली, और आक्रमणकारी का नाम था अहमद शाह अब्दाली। एम्परर, सम्राट ने प्रोविंसेस ऑफ पंजाब और मुल्तान के जो क्षेत्र थे वो हार गए थे। किससे? आक्रमणकारियों से, और आक्रमणकारी का नाम अहमद शाह अब्दाली। उसका जो शासन काल था, किसका? अहमद शाह का पीरियड, वो समय था अशांति का। डिस्टरबेंस माने अशांति का। नेक्स्ट आलमगीर सेकंड, ये बैठे थे 1754 से 59 तक। इनके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया चौथी बार 1757 में। आलमगीर सेकंड एक कठपुतली बन के रह गए थे अपने वजीर के हाथ, और वजीर का नाम था इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क ने आखिर में आलमगीर सेकंड की हत्या कर दी, उसे मार दिया AD 1759 में। शाह आलम सेकंड AD 1759 से 1806 तक। शाह आलम सेकंड एक पेंशनर बन के रह गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में अपनी मृत्यु तक, और उनकी मृत्यु हुई थी 1806। पेंशनर का मतलब है राजा की जगह पर उन्हें पेंशन के रूप में कुछ पैसे दे दिए जाते थे। जैसे हम सरकारी सेवा करते हैं और उसके बाद में जब रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन मिलती है, उसी तरीके से इन्हें पेंशन दे दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेंशन देती थी, कब तक? इनकी मृत्यु तक, और इनकी मृत्यु हुई AD 1806 में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अकबर सेकंड 1806 से 1837 तक। शाह आलम सेकंड की गद्दी पर उसका बेटा बैठा अकबर सेकंड।
जो कि खुद भी एक पेंशनर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसकी मृत्यु 1837 में हुई थी। एंड द लास्ट किंग इज बहादुर शाह सेकंड, AD 1837 से AD 1857 तक। बहादुर शाह रिवॉल्ट क्रांति में भाग लिया था 1857 की, और क्रांति के बाद उन्हें रंगून भेज दिया गया 1858 में, जहां उनकी मृत्यु हो गई 1862 में। और इस तरीके से मुगल डायनेस्टी का भारत में कम टू एन एंड, एक एंड अंत हो गया। इस तरह से मुगल साम्राज्य का भारत में अंत हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। डिक्लाइन माने पतन, कॉजेज कारण, क्या कारण थे मुगल एम्पायर के खत्म होने के, पतन होने के। फॉलोइंग वर द मेन कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। सबसे पहले औरंगजेब की इनटॉलरेंट पॉलिसी, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, कॉज्ड, जिसके कारण बहुत सारे आंदोलन हुए अलग अलग हिस्सों में, हमारे उपमहाद्वीप में, सब कॉन्टिनेंट। औरंगजेब वॉज कॉन्स्टेंटली, औरंगजेब हमेशा बिजी रहता था लड़ाइयों में। जो लड़ाइयाँ कहाँ होती थी? दक्कन में। उसकी एब्सेंस में नॉर्थ इंडिया में विघटन शुरू हो गया। किसका? मुगल शासन व्यवस्था का। इसके अलावा जब लगातार लड़ाइयाँ होती रहीं तो मिलिट्री, सेना का पतन हो गया, सेना खत्म होती गई, ट्रेजरी खत्म होती गई, क्योंकि वो लंबी लड़ाइयाँ लड़ रहा था दक्कन में। वीक सक्सेसर्स, औरंगजेब के जो सक्सेसर्स थे, उसके बाद के उत्तराधिकारी थे, वो बहुत ही कमजोर थे, इनएफिशिएंट, प्रभावी नहीं थे। वो अपने साम्राज्य पर, अपने मनसबदारों पर, लोकल शेफ्समैन एंड अदर ग्रुप्स पर नजर नहीं रख पा रहे थे। और जो दरबारी थे, हु वर अपॉइंटेड एज, जिन्हें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता था और सूबेदार के रूप में, वो क्या करते थे? रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, कर को इकट्ठा करते थे। जनरली कंट्रोल द रेवेन्यू। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जो मिलिट्री का शासन व्यवस्था थी साम्राज्य की, उस सब के ऊपर उनका नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था? नोबल्स, दरबारियों का। एज अ रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ? दे बिकेम वेरी पावरफुल, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गए। एंड द रेवेन्यू ऑफ द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड, और जो मुगल एम्पायर का रेवेन्यू, जो पैसों से संबंधित विभाग होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिक्लाइंड, वो पतन की तरफ चला गया, यानी खाली होता गया। नोबल्स के बीच में कंपटीशन था, मुगल एम्पायर कमजोर होता गया। अलग अलग ग्रुप के बीच में, जो दरबारियों के अलग अलग ग्रुप थे, उनके बीच कंपटीशन था। दो बड़े बड़े ग्रुप थे, ईरानी और तुरानी। जो बाद के मुगल रूलर्स हुए, वो कठपुतली बन के रह गए थे इन दो ग्रुपों के बीच में। 2 मुगल एम्परर्स, फारूक शियार और आलमगीर सेकंड, उन्हें एसेसिनेटेड, मार दिया गया। जबकि जो दूसरे दो थे, अहमद शाह और शाह आलम सेकंड, उनको अंधा कर दिया गया दरबारियों के द्वारा। रिवॉल्ट्स बाय पीजेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिवॉल्ट बाय पीजेंट्स। पीजेंट्स किसान और जो जमींदार थे, वो बढ़ते हुए कर से अनईजी फील कर रहे थे, अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करा रहे थे। दे वर ऑल्सो इंड्यूस्ड द पावरफुल, इसके अलावा इंड्यूस्ड माने प्रेरित करना। जो पावरफुल, शक्तिशाली जो सरदार थे, उनकी जो पोजीशन थी, उसको इससे और मजबूती मिल गई। जब शक्तिशाली हो गए चीफ मैन, तो उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया एम्पायर के बहुत सारे पार्ट में। इन्वेशन बाय नादिर शाह, नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह कौन था? रूलर ऑफ ईरान, ईरान का शासक नादिर शाह। उसने दिल्ली पर आक्रमण किया AD 1739 में। उसने क्या किया? ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, बड़ी मात्रा में धन को लूट लिया। यहाँ से टुक अवे, ले गया। क्या चीज ले गया? पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। कोहिनूर डायमंड, हीरा, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन यहाँ से ले गया। लॉर्ड्स ऑफ, इसके अलावा क्या ले गया? लॉर्ड्स ऑफ अदर, बहुत सारी कीमती चीजें, जिसमें शामिल है सोना और चांदी। ही ऑल्सो ऑर्डर, इसके अलावा उसने ऑर्डर किया मैस के नरसंहार का। किसका नरसंहार? लोगों का। कौन से लोगों का? दिल्ली के लोगों का। नादिर शाह का जो आक्रमण था, उसने वास्तव में रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। किसकी? मुगल शासन की। इसका मतलब
मुगल शासन को कमजोर कर दिया। इससे क्या हुआ? राइज ऑफ मराठा, मराठाओं का उदय हुआ अंडर द पेशवा, पेशवाओं के अंडर में। जल्दी ही मराठाओं का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया अप टू दिल्ली, दिल्ली तक। इन्वेशंस बाय अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेशन बाय अहमद शाह अब्दाली। अफगान रूलर था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। भारत पर आक्रमण किया था कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में 5 बार। AD 1748, 1761, 1761। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के तीसरे युद्ध में जो लड़ा गया था आर्मी की सेना, अब्दाली की सेना के बीच और मराठाओं के बीच में, जिसमें मराठा हार गए थे। पेशवा बालाजी बाजीराव इस युद्ध में, द पेशवा बाजीराव डाइड, उनकी मृत्यु हो गई ऑफ ग्रीफ ड्यू टू द रूइंस ऑफ द मराठा, मराठा आर्मी के पतन के कारण पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। ये एक बहुत ही बड़ा हवा का ह्यूज ब्लो कहते हैं हवा के झोंके को मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। डीमोरलाइजेशन ऑफ मुगल आर्मी, मुगल आर्मी का उत्साह भंग। एक हम बड़े ही मॉरलाइज तरीके से काम करते हैं, बड़े उत्साह से एग्जाम होंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, फर्स्ट आएंगे, वो होता है मॉरलाइजेशन। डीमोरलाइजेशन, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम्हारे नंबर अच्छे आ ही नहीं सकते। डीमोरलाइज करना, उत्साह भंग करना मुगल आर्मी का। मुगल आर्मी किससे मिलकर बनी थी? फुल ऑफ डिफेक्ट्स, बहुत सारे डिफेक्ट थे, कमियां थी। इसमें बहुत सारे फॉरेन के सोल्जर्स थे, सिपाही थे, जैसे कि तुर्क, अफगान और पर्शियन वाले। उन्हें कोई प्यार नहीं था इंडिया से, क्योंकि वो भारत के ही नहीं थे। दूसरा, आर्मी को जो मेंटेन करने वाले थे, जो रख रखाव करते थे, वो थे जागीरदार, जो बहुत ही शक्तिशाली दरबारी थे। तो आर्मी जो है लुक्ड टू हिज जागीरदार, किसी भी समस्या के लिए वो अपने जागीरदार की तरफ देखती थी और समझती थी कि जागीरदार उसके मास्टर हैं और वो उनके प्रति वफादार रहते थे। राजा के लिए वो केयर नहीं करते थे, क्योंकि सारा काम जो करवाते थे वो जागीरदार करवाते थे। कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं था राजा के बीच में, एम्परर सम्राट के बीच में और आर्मी के बीच में। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक बैंकरप्सी, आर्थिक दिवालियापन, कंगाल हो जाना, पैसों से खाली हो जाना, उसे कहते हैं इकोनॉमिक बैंकरप्सी। अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम अकबर के द्वारा स्थापित किया गया, वो कमजोर हो चुका था उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा। उसकी जो रेवेन्यू पॉलिसी थी, कर इकट्ठा करने की, औरंगजेब के द्वारा उसे का पालन नहीं किया गया। और उसके बाद की जो शासक आए, जो रिसोर्सेज, जो साधन थे मुगल एम्पायर के, वो घटते चले गए बाद के मुगलों के द्वारा। शाहजहां का ओवर एक्सपेंडिचर, ज्यादा खर्च करना। शाहजहां ने किस पे खर्च करा? बहुत सारी इमारतें बनवाई, आर्किटेक्चर बनवाए, उस पे उसका खर्चा। और औरंगजेब की जो दक्कन नीति थी, जहां वो लड़ाइयां लड़ रहा था, उससे जो रॉयल खजाना था, शाही खजाना, एम्प्टीड, खाली होता गया। राइज ऑफ मराठा, मराठाओं का उदय। मराठा जो थे वो सपना देख रहे थे अपनी ताकत को इस्टेब्लिश बढ़ाने का। कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में। और ये तभी हो सकता था जब वो क्रश, दबा देते, कुचल देते शक्तियों को। किसकी शक्तियों को? मुगल की शक्तियों को। बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठाओं ने एक्टिव पार्ट लिया सेंट्रल मध्य की राजनीति में। और उन्होंने क्या किया? राजा बनाने वाले बन गए। उन्होंने सहायता की मुगल एम्परर्स की फॉरेन इन्वेशंस के, फॉरेन आक्रमणकारियों के खिलाफ। अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना। किसके रूप में आए थे? ट्रेडर्स, व्यापारियों के रूप में। धीरे धीरे उन्होंने बढ़ावा दिया ड्रीम्स ऑफ कॉन्करिंग, कॉन्करिंग माने जीतना, शासन करना, पूरे भारत पर जीतना और पूरे भारत पर शासन करने की अपने सपने को उन्होंने और आगे बढ़ावा दिया। उनके पास में नए हथियार थे, नई टेक्निक थी लड़ाई की, ट्रेनिंग थी, डिसिप्लिन आर्मी थी, स्ट्रांग नेवी थी। दे सक्सीडेड, वो सफल होते गए भारत से बाहर अपने जो राइवल्स, जो दुश्मन थे, उन्हें बाहर निकालने के लिए। और दुश्मन कौन थे? मुगल, मराठा, पुर्तगालीज, डच एंड फ्रेंच। और इस तरीके से पूरे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सी फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग।
The later Mughals are the Mughal rulers after Emperor Aurangzeb. Clear? The later Mughals are the Mughal rulers after Emperor Aurangzeb. Second, Muazzam was crowned as the emperor under the title of Bahadur Shah first. Muazzam was crowned as the emperor under the title of Bahadur Shah first. Which Mughal ruler was famous as the Lord of Misrule? Jahandar Shah. Lord of Misrule, Jahandar Shah. Farrukh Shiar was deposed by Sayyid brothers. Farrukh Shiar was deposed by Sayyid brothers. Which Mughal ruler took part in the revolt of 1857? Bahadur Shah second. किस मुगल ने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया? बहादुर शाह सेकंड. नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन AD 1739. नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया 1739 में. पानीपत का तीसरा युद्ध AD 1761. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन AD 1761. हु टुक अवे द पीकॉक थ्रोन? मयूर सिंहासन कौन ले गया? नादिर शाह. हु टुक अवे द पीकॉक थ्रोन? नादिर शाह. बहादुर शाह सेकंड वाज एक्साइल्ड टू रंगून. बहादुर शाह को कहाँ भेज दिया गया था? रंगून. देश से जब निकाला था तो उसे भेजा था रंगून. ब्रिटिश केम टू इंडिया एज. ब्रिटिश क्या बन के इंडिया आए थे? ट्रेडर्स, व्यापारी. ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स. लेटर मुगल्स सक्सीडेड इन टेकिंग द मुगल्स एम्परर टू न्यू हाइट्स. इट्स ट्रू और फॉल्स? यस, इट्स फॉल्स. औरंगजेब adopted intolerant policies. True. फारूक सियार was assassinated. फारूक सियार की हत्या की गई थी, मर्डर किया गया था. Yes. The resources of the later Mughal increased very quickly. True. The third battle of Panipat was fought between Nadir Shah and the Marathas. False. Now come to the fill in the blanks. During Muhammad Shah's reign, the administrative powers were wielded by the Sayyid brothers. Shah Alam II was succeeded by Akbar. Peasants and zamindars were uneasy with the mounting taxes. किसान और जमींदार बहुत ही ज्यादा अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे बढ़ते हुए टैक्सेस से. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन आर्मीज ऑफ अब्दाली एंड मराठा. तीसरा पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? आर्मी ऑफ अब्दाली एंड मराठास. पीकॉक थ्रोन किसने बनवाया था? शाहजहां. पीकॉक थ्रोन वाज बिल्ट बाय शाहजहां. नाउ मैचिंग. बहादुर शाह इन विच ईयर? AD 1707 से 1712 तक. बहादुर शाह 1707 टू 1712. जहांदार शाह AD 1712 टू 1713. मोहम्मद शाह AD 1719 टू 1748. अकबर सेकंड AD 1806 to 1837. Now last Bahadur Shah second AD 1837 to 1857. Now questions. Write in brief about Bahadur Shah. बहादुर शाह के बारे में ब्रीफ में लिखिए. ब्रीफ मीन्स शॉर्ट. Bahadur Shah first was a learned man, but he was a weak ruler and incapable of taking decisions. Bahadur Shah first was a learned man, but he was a weak ruler and incapable of taking decision. Why was Jahandar Shah called the Lord of Misrule? Jahandar Shah को Lord of Misrule क्यों कहा जाता है? Because Jahandar Shah successfully defeated and killed his brother and ascended the throne in his 51st year. Because क्योंकि जहादार शाह ने अपने भाइयों की हत्या कर दी और 51वें साल में तख्त पर चढ़ के बैठ गया. Now, who deposed Farrukh Siyar? Who deposed Farrukh Siyar? Farrukh Siyar was deposed by Sayyid brothers. Farrukh Siyar was deposed by Sayyid brothers. Write in brief about Rafiul Dawla. Write in brief about Rafiul Dawla. Rafiul Dawla was the elder brother of Rafiul Dazrat. Rafiul Dawla was the elder brother of Rafiul Dazrat. He took the title of Shah Jahan II. He died of sickness of 16th September 1719. Write a short note on Shah Alam II. Shah Alam II remained a pensioner of the East India Company till his death in AD 1806. Now students, see answer for the spelling of Rafiul Dawla.
was the elder brother of Rafi-ul-Dazrat, UL, Rafi-ul-Dazrat. And last, Shah Alam II remained a pensioner of the East India Company till his death in AD 1806. Write a note on Muhammad Shah. Roshan Akhtar, the son of Jahandar Shah, took the title of Muhammad Shah. During his reign, the Mughals became smaller in size. He died in April 1748. Briefly write about Bahadur Shah II. Briefly write about Bahadur Shah II. Bahadur Shah took part in the revolt of AD 1857. After the revolt, he was exiled to Rangoon. In AD 1858, he died there in AD 1862. Hope you understand the chapter well. Thank you.